فتاوا رضویہ شریف کی 634 صفحے پر 29ویں جلد میں اصل میں مسئلہ معراج کا ذکر ہے۔ مسئلہ معراج، آپ حیران ہوں گے کہ معراج میں ختم نبوت کیسے؟ تو یہ امام اہل سنت کا کمال ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا کمال ہے۔ بیان یہ ہو رہا تھا کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد اقصی گئے، وہاں سے سدرہ گئے، وہاں سے عرش پہ گئے اور آیات خداوندی کا دیدار کیا، جنت دوزخ کا معائنہ کیا، واپس آئے، بستر گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو کفار مکہ اس پر بغلیں بجاتے ہوئے آ گئے کہ پہلے جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ تو ہم چیک نہیں کر سکتے، آج انہوں نے جس چیز کا ذکر کیا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی گئے ہیں، چونکہ آج تک ویسے نہیں گئے اور ان کا دعویٰ ہے میں راتوں رات گیا ہوں اور پھر آ بھی گیا ہوں، تو ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اور سرکار کو پکا کر رہے تھے کہ واقعی تم گئے ہو نا؟ آپ نے بالکل میں گیا ہوں۔ یہ تذکرہ کرتے کرتے الحضر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ فرما دیا۔ جب کافروں نے پھر پوچھا کہ بات پہ قائم ہونا، تم گئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں گیا ہوں۔ کافر بغلے بجاتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ گمان تھا کہ ایسی ناممکن بات سن کر وہ بھی معاذ اللہ تصدیق سے پھر جائیں گے۔ صدیق سے عرض کی آپ نے کچھ اور بھی سنا؟ آپ کے یار فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا اور شب ہی شب میں واپس ہوا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا وہ ایسا فرماتے ہیں؟ کہا ہاں وہ یہ حرم میں تشریف فرما ہے۔ صدیق نے فرمایا تو واللہ حق فرمایا، یہ تو مکہ سے بیت المقدس تک کا فاصلہ ہے، میں تو اس پر ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام آسمان کی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ پھر کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے نشان پوچھے، جانتے تھے کہ یہ تو کبھی تشریف لے گئے نہیں، کیوں کر بتائیں گے؟ وہ جو کچھ پوچھتے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے۔ کافروں نے کہا واللہ نشان تو پورے صحیح ہیں، یعنی گئے پہلے نہیں، راتوں رات کہتے ہیں میں گیا ہوں، اور جو بھی نشانی پوچھی ہے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں۔ اب انہوں نے نیا سوال کیا، پھر اپنے ایک قافلے کا حال پوچھا جو بیت المقدس کو گیا ہوا تھا کہ وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا اور کہاں ملا تھا اور کیا حالت تھی اور کب تک آئے گا؟ اتنے غیب کے سوال کر دیے۔ یعنی پہلی چیز مسجد اقصی کے بارے میں جو نشانیاں پوچھی جواب مل گیا۔ قریش مکہ نے اس کے بعد پھر یہ پوچھا کہ ادھر ہمارا ایک قافلہ بھی گیا ہوا تھا تو وہ تمہیں رستے میں ملا ہے یا نہیں؟ کہاں ملا ہے اور کس حالت میں تھا اور پھر کب آئے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سب کچھ بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں منزل میں ہم کو ملا تھا اور یہ کہ اتر کر ہم نے اس میں ایک پیالے سے پانی پیا تھا اور اس میں ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اب آگے قافلہ کب آئے گا؟ تھے مکہ کے مشرک، تھے مکہ کے مشرک، مگر ان کا بھی نظریہ تھا کہ نبی سچے ہیں تو کل کی خبر بتائیں گے۔ پوچھتے ہیں قافلہ کب آئے گا؟ اب آپ سوچیں، اب سائنس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اگر فلائٹ کا ٹائم رات 11 بجے ہے تو ضروری نہیں 11 بجے ہی آئے، ہو سکتا ہے 11:05 پہ آئے، ہو سکتا ہے 10 پہ آئے، 11:15 آئے، 11:30 آئے یا 11:45 آ جائے۔ اب اس پر پوری نبوت کا مدار ہے کہ ہمیں بتاؤ قافلہ کب آئے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
काफिला फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। ये 4 बजे 5 बजे 6 बजे ये तो पैमाने थे ही नहीं, और तुलुए शम्स तो वाज़ेह चीज है ना, तुलुए शम्स फलां दिन तुलुए शम्स के वक्त काफिला आएगा। ये मुद्दत जो इरशाद हुई मंजिलों के हिसाब से काफिला के लिए भी किसी तरह काफी ना थी। यानी सरकार ने जो फरमा दिया दिन, मंजिलों के लिहाज से उतने दिनों में काफिला नहीं आ सकता था, वो वक्त काफी नहीं था। अब एक तरफ सहाबा है, दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का है। मुशरिकीन मक्का की यह डिमांड है कि उस दिन का सूरज तुलू हो और काफिला ना आए, और सहाबा की यह डिमांड है कि जूं ही सूरज तुलू हो तो काफिला आ जाए। दूसरे लफ्जों में पूरी नबूवत के लिहाज से एक चैलेंज है, और सहाबा सारे इस सोच पर हैं कि जो खबर सरकार ने दी है गैब की वो सच्ची साबित हो। सारी नबूवत इस पे है, वो खबर सच्ची साबित हो। अगली बात करने से पहले मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज मसलकों की जंग में कौन है जिनकी सोच वो है जो उस वक्त मक्का के मुशरिकों की थी, और कौन है जो उस सोच पे है जो उस वक्त सहाबा की थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। यानी एक गैब की खबर का मसला है। सहाबा कहते हैं हर हाल में सच्ची होनी चाहिए, सच्ची होगी, इस सोच में है। और दूसरी तरफ मुशरिक टोला है, उनको है कि कहीं 1 मिनट का भी फर्क हो जाए तो हम पूरी नबूवत का इनकार कर देंगे। इस बेस पर देखो माज़ल्लाह इनकी तो खबरें ही सच्ची नहीं होती। इस सूरत हाल में आला हजरत रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब वो दिन आया कुफार पहाड़ पर चढ़ गए कि किसी तरह आफताब चमक आए और काफिला ना आए, तो हम कह दें कि देखो माज़ल्लाह वो खबर गलत हुई। ये उनकी तरफ थी। कुछ जानबे शर्क तुलुए आफताब को देख रहे थे और कुछ जानबे शाम राह काफिला पर नजर रखते थे। दोनों तरफ उन्होंने कैमरे फिट कर लिए, आंखें लगाई हैं, कुछ इस इंतजार में है मशरक की तरफ कि सूरज तुलू हो जाए, बस सिर्फ थोड़ा सा तुलू हो जाए तो हम कहें देखो कोई नहीं आया तो नबूवत ही सही नहीं, यानी गैब की खबर गलत हो गई है माज़ल्लाह। दूसरे देख रहे हैं कि शाम की तरफ काफिले को। आला हज़रत लिखते हैं उनमें से अब बिल्कुल दोनों तरफ निगाहें लगा के खड़े हैं, उनमें से एक ने कहा वो आफताब चमका, कि उनमें से दूसरा बोला वो काफिला आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अब देखिए ये मुशरिक है। एक टोले ने कहा वो आफताब चमका, दूसरे ने कहा वो काफिला आया। तो ये लिखकर अब आगे हमारा आज वाला मौजू शुरू हो रहा है। आला हज़रत कहते हैं ये होती है सच्ची नबूवत, ये होती है सच्ची नबूवत। बोलो सारे, ये होती है सच्ची नबूवत कि जिसकी खबर में सरे मुंह फर्क आना मुहाल है। बाल जितना भी फर्क नहीं आ सकता, बाल जितना भी फर्क नहीं आ सकता। ये लिख के आला हज़रत लिखते हैं कादियानी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी। कादियानी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी। जो लोग कहते हैं वो भी ये तावील कर रहे हैं, वो तावील कर रहे हैं, कोई कहता है खिलाफत मान रहे हैं, कोई कहता है ज़िल्म मान रहे हैं, कोई कहता है मुजद्दिद मान रहे हैं। अपने उस काने को
कोई कहता है नरम हाथ रखो, मामू है, चचा है, बरादरी है। आला हजरत कहते हैं कादियानी से ज्यादा तो उन कुफ्फारे मक्का ही की अकल थी। कादियानी से ज्यादा तो उन कुफ्फारे मक्का ही की अकल थी। क्यों? वो जानते थे कि एक बात में भी कहीं फर्क पड़ जाए तो दावा नबूवत माज़अल्लाह गलत हो जाएगा। एक बात में भी दी हुई खबर एक भी अगर माज़अल्लाह गलत हो गई तो फिर दावा नबूवत नहीं सही। ये कुफारे मक्का की भी सोच थी कि नबी सच्चा होता है, नबी की गैब की खबरें सच्ची होती हैं, नबी की पेशीन गोई सच्ची होती है। तो आला हजरत लिखते हैं मगर ये झूठा नबी, मिर्जा मगर ये झूठा नबी है कि झूठ के फंके उड़ाता है और ना वो शर्माता है और ना उसके मानने वालों को इसका हिस्स होता है। ना वो खुद शर्माता है ना उसके मानने वालों का एहसास होता है। यानी वो झूठा और उसके मानने वाले झूठे, इनकी अकलें इतनी जंग आलूद है कि इससे तो मक्का के मुशरिकों की अकल अच्छी थी। मुशरिक जरूर थे मगर कादियानी नहीं थे। ये क़यामत तक जुमला याद रखना, मुशरिक थे मगर कादियानी। वो अबू जाल का टोला वो मुशरिक थे मगर कादियानी नहीं थे। कादियानी तो कितना बदतर है, मुशरिक हो के उन्हें यकीन था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी है कि काफिला फलां दिन आएगा, अगर थोड़ा जा भी फर्क पड़ जाए तो हम इनकी सारी नबूवत को चैलेंज कर देंगे। देखो तो तुम्हारी खबर ही नहीं सच्ची हुई, अगर सच्ची होती तो हम नबी मानते। यानी उनके नजदीक भी नबी के लिए यह जरूरी है कि उनकी खबर सच्ची हो 100%, थोड़ा सा भी फर्क उसमें ना हो। और मिर्जा क्या कहता है, अल हज कहते हैं कि बल्कि दरी कमाल शोख बा चश्म आंखों में आंखें डालकर कहता है हाँ हाँ अगले 400 अंबिया की भी पेशगोइयां गलत हुई कि मिर्जा कादियानी अपने झूठ के साबित हो जाने पर दीगर 400 नबियों पर भी माज़अल्लाह इल्जाम लगा रहा है कि मेरी बातें गलत साबित हो गई है तो उनकी भी तो गलत हो गई थी। हालांकि किसी नबी की कोई खबर झूठी नहीं हुई। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कादियानियत समझाने के लिए लोगों को ये हवाला देकर बताते हैं कि आम लोगों को पता नहीं चलता और समझते हैं कोई मामला नहीं। ये मिसाल देकर कि एक तरफ कादियानी है, वो खुद भी झूठ बोलता है, दावा नबूवत का करता है और झूठ पर कहता कोई नहीं मेरी बात झूठी हो गई है तो माज़अल्लाह 400 नबी पहले उनकी भी झूठी बातें हो गई थी। वो अपने आप को भी झूठा करार देकर फिर भी नबी कहता है और पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी झूठ को जायज समझता है, हालांकि उन्होंने झूठ नहीं बोला। और दूसरी तरफ कुरैश मक्का है, वो एक खबर के लिहाज से भी समझते हैं कि अगर वो झूठी हो जाए तो बंदा नबी नहीं हो सकता और ये सैकड़ों खबरी झूठी मानकर भी नबूवत का दावा कर रहा है। लिहाजा आला हजरत अवाम अहले सुन्नत और सादा मुसलमानों को समझाने के लिए कि कादियानियत क्या होती है, कादियानियत क्या बला है, आप फरमाते हैं कि मक्का के मुशरिक थे मगर कादियानी नहीं थे कि उनकी सोच इस लिहाज से कादियानी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी, अगरचे उनमें किसी लिहाज से कोई खैर नहीं। लेकिन कादियानियत कैसी बला है और कैसा पागलपन है और कैसा मजनूनपन है और इसमें अकल कैसी मारी जाती है। हालांकि अबू जाल सुम्मुम बुकमुन उमजुन सारी मोहरें लगी हुई थी मगर फिर भी इतना तो था कि नबी सच्चा होता है, नबी झूठ नहीं बोल सकता। इतनी बात फिर भी मुशरिकीन ने मक्का को हासिल थी और कादियानियों को तो ये भी हासिल नहीं। लिहाजा लोगों दूर रहना कादियानियत से। तुम अबू जाल का नाम सुनते हो तो
नफरत करते हो कुफर का हवाला और शिरक का हवाला। लिहाजा अगर कहीं कादियानियत का नाम सुनो, कादियानियत की बदबू आ जाए और कादियानियत के लिहाज से पता चल जाए तो अबू जाल से जो नफरत है उससे बढ़ के नफरत करो उस टोले से, उन लोगों से। इस वास्ते के नबूवत के बारे में इनकी सोच तो उस अबू जाल से भी ज्यादा गंदी थी कि वो टोला भी कह रहा था कि अगर नबी होगा तो खबर सच्ची होगी, और ये नबी मान के फिर भी कि नबूवत के साथ झूठ को इकट्ठा कर रहे हैं और कहते हैं माशाअल्लाह 400 नबियों ने भी झूठ बोला था। तो इस बुनियाद पर आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेराज के मसले से भी ये साबित किया कि ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का झंडा मेराज के मौजू के लफ्ज लफ्ज से वाज़े नजर आ रहा है। फतावा